Introduction to organic chemistry. Let's see. Then it says here, give the structure of the four structural isomers of C4H9Br. तो चार कार्बन हैं, तो सबसे पहले यूं लिख लें 1 2 3 4 और Br यहाँ पे आ गया। फिर उसको यहाँ पे CH3 कर दें। दूसरा 1 2 3 4, अब Br यहाँ पे लगा दें। दूसरा तीसरा 1 2 3, Br यहाँ रहने दें, एक कार्बन यहाँ पे लगा दें। चौथा एक कार्बन यहाँ पे, वन यहाँ पे, वन यहाँ पे, वन यहाँ पे, और एक Br यहाँ पे लगा दें। या और इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 2 3, Br here and carbon here. That's it. They are called isomers to each other. Same molecular formula but different structure formula. इसको पहले वाले को यूं भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2Br। दूसरे वाले को यूं लिख सकते हैं CH3 CH BR CH। पेन पेन हैंडी रखें, कीप राइट हैंड डाउन। तीसरे वाले को यूं भी लिख सकते हैं, थर्ड वन CH3 CH B sorry CH3 CH2Br, and the fourth one is like this CH3 CH3 H3 and Br। पहले वाले का नेम क्या बनेगा? नेम द फर्स्ट वन, select the longest carbon chain, selected, number the chain from the end closer to the functional group। वन पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो, तो इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सिमिलरली इसका नाम क्या बनेगा बोलें? select the longest carbon chain containing carbon attached to the functional group। you done in O levels अल्कोहल की नेमिंग में। इसका नाम क्या बनेगा दूसरे वाले का? व्हाट इज द नेम फॉर द सेकंड वाला? ये वाले का क्या नाम है? नो वन इज देयर। I do it again. This is C4H9Br। Draw all the structural isomers of this one, structural isomers। तो यहाँ पे हम बॉक्सेस बना देते हैं लाइक दिस। पहला ये बनेगा 1 2 3 4 एंड देन Br। इसके यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे एज वी डन इन ओ लेवल्स। ये क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2Br। इसका स्केलेटल क्या बनेगा? दिस इज स्केलेटल 1 2 3 4 और ये Br। नाम क्या बनेगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये क्या है? प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन है। क्या है ये? है प्राइमरी हैलोजिनो alkane। What is primary halogenoalkane? Okay, this is a compound in which the functional group is attached to a carbon which is bonded to one more carbon. One more carbon says attached है. This is called primary halogenoalkane। The bromine or the halogen is attached to a carbon which is further attached to one more carbon, that is this one। तो इसको कहते हैं प्राइमरी हैलोजिनोअल्केन। नाउ वी ड्रॉ द सेकंड वन। वो ये बनेगा 1 2 3 4 and then we bring Br here। आपकी मर्जी है कोई भी बनाए, बट आई एम डूइंग इन दिस ऑर्डर। तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2 CH Br and CH3। select the longest carbon chain, we have selected। यहाँ पे select the longest carbon chain करें। ये 1 2 3 4 बनेगा, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करेंगे? राइट से करेंगे या लेफ्ट से करेंगे बोलें? नंबरिंग राइट से करेंगे या लेफ्ट से करेंगे?
Select the longest carbon chain. We selected. Number the chain from the end closer to the functional group. किस साइड से functional group comes first? बोले right or left? This is right, this is left. बोले Right. राइट से, तो 1 2 3 4। इसका नाम क्या बनेगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और इसका स्केलेटल कैसे बनेगा? 1 2 3 4, और यहाँ पे ब्रोमो लगा दें। ये भी सही है और ये भी सही है। 1 2 3 4, यहाँ ब्रोमो लगा दें। गॉट इट? ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स हैं? बोलें। इन आइसोमर्स को क्या कहते हैं? दे व्हाट आर दे टू व्हाट दे आर टू ईच अदर? हैं तो ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स, बट व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर दे? Both are structural isomers. There are three types of structure isomers. Number one, chain isomer, positional isomer, and functional group isomers. बोलें ये कौन से isomers हैं? Functional group isomers. No, they're not functional group isomers. Same functional group in both of them. So they're not functional group isomers. What kind of isomers are they? Positional isomer. Positional isomers. Why positional isomers? Because position of the functional group is changed. Compounds. Okay, what is positional isomers? Compounds with the same molecular formula but different position of the functional group in the longest carbon chain. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को नेक्स्ट टाइम ये लिखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, ताकि आसान हो जाए। सो दे आर पोजिशनल आइसोमर। और दो आइसोमर्स बनाते हैं, लेट्स सी। एक ये बना रहे हैं, ये कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां बी आर लगाया और एक कार्बन यहां पे लगा दिया। ये कौन सा आइसोमर है? ये बनेगा CH3CH, CH3CH2Br. Select the longest carbon chain selected. Can you name this, please? Can anyone name this? Ranim, can you name it? वन टू थ्री। अब अल्फाबेटिकली नेम करेंगे तो बनेगा 1 ब्रोमो 2 मीथाइल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्या नाम है? प्रोपेन। और इसका स्केलेटल क्या बनेगा? 1 2 3, यहाँ पे आ गया बी और यहाँ पे आ गया मीथाइल। 1 ब्रोमो 2 methyl. We won't say 2 methyl 1 bromo because naming is going for the alphabetic in the alphabetical order. तो 1 ब्रोमो बनेगा, 2 methyl बनेगा और उसके बाद प्रोपेन आएगा। Got this? Yes. एक और आइसोमर इसका बनेगा, वो ये है। एक ही कार्बन पे ब्रोमीन भी लगा दें और मिथाइल ग्रुप भी लगा दें। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना देते हैं। वो क्या बनेगा? CH, वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम डूइंग टुडे, BrCH3CH3। तो ये इसका नाम बनाएंगे 1 2 3। इज दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? लेट मी नो, इज दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? No. Is this the longest carbon chain then? No. Is this the longest carbon chain? Yes. Is this the longest carbon chain? Yes. Very good. Who is this? Running. 1 2 3, क्या नाम बनेगा? 2 ब्रोमो 2 methyl प्रोपेन। इसको यूं भी, हम यूं भी नंबरिंग कर सकते हैं। CH3C, नॉट C, CH3C
H3 ऊपर CH3 and then Br है. So start numbering them. Number the chain from then closer to the functional group. So ये हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 bromo, 2 methyl propane. अब जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वी आर हियर नाउ. वेरी इंपॉर्टेंट बिट कमिंग नाउ. इस कंपाउंड में कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी. इन कंपाउंड बी द ब्रोमीन इज अटैच्ड टू ए कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू टू कार्बन्स. I repeat. In B, bromine is attached to a carbon which is further attached to two carbon. That's why it is called secondary halogenoalkane. Here, come here. This is C. The bromine is attached to a carbon which is further attached to only one carbon. So this is primary as well. Now see in here. The bromine is attached to a carbon which is further attached to three carbons. थ्री कार्बन, वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन. ये कार्बन, जो ऑरेंज वाली कार्बन है, तीन कार्बन के साथ अटैच है. तो सर्कल्ड है विद द ग्रीन. इज अटैच टू थ्री कार्बन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टर्शरी हेलोजिनो अल्केन. आई रिपीट, दोबारा देखते हैं. इज दिस प्राइमरी और सेकेंडरी? सर प्राइमरी है ये तो. This is primary because bromine is attached, or the function is attached to carbon which is further attached to one carbon. Is this primary or secondary? टर्शरी. Is this primary or secondary? Secondary. Bromine is attached to a carbon which is further attached to two carbons only. Secondary. Is this primary or secondary? Or tertiary? Primary. It is primary because bromine is attached to a carbon which is further attached to only one orange carbon. That's it. This is called primary again. Is this primary or secondary or tertiary? इस कार्बन ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी टर्शरी, क्या है बताएं जरा मुझे. बोलें. ए. Tertiary. ए इज टर्शरी. बी. Secondary. बी सेकेंडरी. सी. Primary. सी इज प्राइम. यहाँ से ये प्राइमरी हेलोजन एल्केन है, यहाँ पे सेकेंडरी हेलोजन एल्केन है, यहाँ पे टर्शरी हेलोजन एल्केन है. राइट इट डाउन प्लीज. Very important things. Very small molecules always keep coming. They don't really give you big molecule like C200H, 200H, 402. Wrong. You ain't gonna get nothing like this. Small molecules. You need to have a full grip on the small molecules. Methane, ethane, propane, butane, pentane, maximum hexane. That's it. Even smaller than those. Methane से smaller कोई नहीं है. Write it down. Done. Yes, sir. एवरीवन, समझने की जरूरत है, घर बैठ के प्रैक्टिस करने की जरूरत है. यू विल गेट एवरीथिंग इंशाल्लाह. लेट्स मेक ऑर्गेनिक द इजीएस्ट. दान हुसैन, यस सर. घर बैठ के काम करते हैं ना? सर अभी इसके पास पेपर्स नहीं खोले मैंने सर. पास पेपर की जरूरत नहीं, जो मैं करा रहा हूँ यही पास पेपर है फिलहाल आपके. ये बोलें, इसका नाम क्या है? सर ये पहला तो प्राइमरी है. नाम क्या है? सर वन ब्रोमोब्यूटेन. ए, 1 ब्रोमोब्यूटेन. इसका नाम क्या है? सर ये टू ब्रोमोब्यूटेन. इसका नाम क्या है?
Like the longest carbon chain. 1 2 3 बोलें अब. सर वन ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन. 2 methyl. Yeah. 1 bromomethyl propane भी ठीक है. But 1 bromo 2 methyl propane much better. 1 bromo 2 methyl propane. ओके, इसका नाम क्या है? लास्ट वाला. सर ये टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन. 2 methyl, वेरी गुड. गुलसाना अंडरस्टैंडिंग. ये आपस में कौन से आइसोमर्स हैं बोलें? Yes. ABCD. जी गुलसाना, गुलसाना बोलें, ए और बी आपस में कौन से आइसोमर्स हैं? Positional. पोजिशनल आइसोमर्स हैं. और ए और सी आपस में कौन से आइसोमर्स हैं? Chain. चेन आइसोमर्स. बाकी को भी इस तरह आप कर सकते हैं. समझ आ रही है बात आपको? इसको लिख लें. ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं. 4 4 मार्क्स, 5 5 मार्क्स. लेट्स मेक द इंट्रोडक्शन वेरी इजी फॉर अस. डू राइट इट डाउन. अभी लिखेंगे आपको फायदा होगा. बाद में भी आप घर पे यू कैन डू इट फ्रॉम द वीडियोस. इज वीडियो गुड इनफ और जस्ट गुजारा? एनी वन ऑफ यू कैन यू आंसर प्लीज? सर मैं तो वीडियो. नहीं देखता. जी. सर मैं वो देखता नहीं हूँ वीडियोस. नहीं देखते? नहीं सर. कोई और बता सकता है? किसी को समझ आई है वीडियो में से कि बस ऐसे ही है? गुलसाना. Ranim, did you watch the video? Yes, Was it any good? yes. I was It's a asking good the video. question to everyone. समझ आती थी? जी सर. Alright, done? Done? Yes. सर एक मिनट. Next. Sorry? 1 minute. स्केलेटल बनाए पहले वाले का. 1 2 3 और ये ब्रोमीन. दूसरे वाले का 1 2 3 और यहाँ ब्रोमीन. तीसरे वाले का 1 2 3 और यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ मिथाइल ग्रुप. चौथे वाले का 1 2 3 यहाँ ब्रोमीन और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप. ड्रॉ द स्केलेटल्स एज वेल. दे डू आस्क फॉर द स्केलेटल्स for 2 marks, for 1 mark, for 4 marks. Done? Yes. Next. We go to the question now. आइए जी. Then he said, write down the name of them. Okay, yes. Which of these carbons, sorry, I forgot to ask you the question. Which of these carbon is which of these compounds are the optical isomers of each other? Which of the compound shows the optical isomerism? Which of these compounds contain a chiral carbon? बोलें. सर सी. What is chiral carbon, sir? सर बल्कि बी होगा सर. Yeah, it is B. तो यहाँ पे स्टेरिक लगाएं. मैं बी दोबारा ड्रॉ करता हूँ. इधर देखिएगा. दिस इज बी. CH3 CH Br CH2 CH3. What is chiral carbon? A carbon attached to 4 different atoms or groups. So we have seen this is chiral carbon law. इसका अब वो कहता है इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करें. तो दरमियान में बनाएंगे मिरर लाइन. लेफ्ट पे लिखेंगे कार्बन, ऊपर H, नीचे ये लगा के Br
और इधर लिख दें CH3 और ये बन गया C2H5। दूसरे वाले को बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ये बनाया H, इसको थोड़ा सा इधर टिल्ट कर दिया और यहाँ पे बन गया C2H5 और ये बन गया CH3। Who are they to each other? They are mirror images to each other. Are they superimposable? No, 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 no. They are non-superimposable. Non-superimposable mirror images. What does it mean? They don't fit onto each other exactly. They cannot overlap each other. If you हम right वाले C को उठा के left पे लेवे डालें, not all the groups will fit onto each other. एक नंबर दो, how they are different? They are different biologically. They have the same physical properties. They have same physical properties. They have same chemical properties, but they have different biological properties. Okay, income mixture. What is their mixture called? If this is 50%, this is 50%. Their mixture is called race mate. Race mate. What are they called to each other? They are called enantiomers. 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 इनको कहते हैं, the mixture of enantiomers is called race mate. Definitions मैंने आपको लिखवा दी हुई हैं, ऐसे ही है ना? जी सर। एक दफा दोबारा जरा देख लीजिएगा, ये बातें सारी वही हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। सो दे आर कॉल्ड रेस मेट। व्हाट इज रेस मेट? रेस मेट इज द मिक्सचर ऑफ both of these isomers. सर अगर ये सुपर इम्पोजिबल हो तो कायरल का वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे होंगे? They are non superimposable. They are not superimposable. सर अगर सुपर इम्पोजिबल हो तो वो होगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। Superimposable तो वही एक ही हो जाएगा ना, तो वो तो वही होगा। इसका सुपरइम्पोजिबल यही हो सकता है ना, HCH3C2H5CHOH। इसका सुपरइम्पोजिबल यही होगा ना, CHCH3C2H5OH। तो ये तो इसको उठा के इस पर रख देंगे तो एक ही चीज होगी ना। ये सर तो ये एनेंटियोमर्स हैं? दे आर नॉट एनएंटियोमर्स, दे आर सेम थिंग। ये तो आइसोमर्स ही नहीं है एक दूसरे के। दे नॉट इवन आइसोमर्स टू ईच अदर। आप अपने आइसोमर हैं। नहीं सर। Are you different and you are different? Are you and you different? नहीं सर, सेम हूँ मैं तो। That's it. That's it. So they non-superimposable means superimposable means the same thing. Next. All right, what you said now? C5H10O. ये क्या कह रहा है? C5H10O कहते हैं एल्डिहाइड है। ले जी ड्रॉ करते हैं एल्डिहाइड्स विद 5 कार्बन्स। C5H10O उसने खुद बताया एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है? ये वाला ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH। कितनी कार्बन और है? 1 2 3 4 कार्बन और, तो यहां पे लगा दें। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? प्रोपानल। एल्डिहाइड एथेनल मेथेनल प्रोपानल है। इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला? CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड H। क्या नाम है इसका? प्रोपानल। इसका स्केलेटल क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। ये बन गया। H लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरह भी बना सकते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, यहाँ पे कार्बन है, ओ डबल C डबल बॉन्ड हुआ है और यहाँ पे कहीं पे उसका चौथा बॉन्ड भी तो लग रहा है ना, अच्छा है कहीं ना कहीं। सो ये हमने अपने जहन में रखी हुई हैं ये बातें। यू डोंट हैव टू ड्रॉ देम बट वी नो इट।
समटाइम्स घर में मम्मा आ रही होती है तो कमरे में फौरन पता लगता है मम्मा, ये पाँव की आवाज़ मम्मा की है। पता लगता है कि नहीं लगता? पता लगता है कि नहीं लगता? लगता है सर। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपको कार्बन का स्केलेटल यूं नजर आ रहा हो यूं करके, तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। ये खुद ब खुद आपके जहन में होना चाहिए, किसी को ड्रॉ करके बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्कूल में जब आप छुट्टी होती है तो कोई आपको लेने आता है, तो ये थोड़ी होता है कि आप चेक करते हैं आई मामा ना, आई यू आर, शो मी ID कार्ड, ये पासपोर्ट, हाँ कहाँ गो विद यू लुक लाइक मामा बट यू नॉट। ठीक है, ऐसे हम नहीं कहते थे, हर वक्त कंफर्म नहीं करते, हमें मालूम है इट इज। दानियाल केम वेरी लेट, रानी असराफ केम लेट। जी बोले। बाद में सुनते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, he said draw the five isomers of, no, draw the isomers of pentanol। पहला क्या बनाया मैंने वहां पे, ये देखिएगा, पहला ही बनाया ये CH3, CH2, 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 C डबल बॉन्ड H। दूसरा बनाऊंगा CH3, CH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड H। तीसरा बनाएंगे CH3, CH2, CH3, C डबल बॉन्ड H। चौथा बनाएंगे CH3, 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 C डबल बॉन्ड OH। ये सारे के सारे क्या हैं, एल्डिहाइड है। पहले वाले का क्या नाम है, ए का नाम क्या है, बी का, सी का, डी का, और बस चार ही बन रहे हैं, 1 2 3 4, यस। व्हाट इज द नेम फॉर द फर्स्ट वन? कैन एनीवन आंसर प्लीज? रानिम। पहले वाले का नाम क्या है, ए का नाम क्या है? एनी वन ऑफ यू? ब्यूटेनल। ये 5 कार्बन के साथ ब्यूट होता है। हम्म। पेंटेनल। पेंटानल। इसका नाम क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, डन। नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द फंक्शनल ग्रुप, 1 2, हमेशा हमेशा ऑलवेज एल्डिहाइड वाली कार्बन इज द फर्स्ट कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन इज द फर्स्ट कार्बन इन एल्डिहाइड। जी बोले, क्या नाम बनेगा इसका? एनी वन ऑफ यू प्लीज? 3 methyl butanol। 3 methyl 1 butanol, डोंट से दैट, ब्यूटेनल हमें मालूम है पहली कार्बन ही वही है, ब्यूटेनल। इसका क्या नाम बनेगा, बोले जल्दी से, रानी असराफ। 2 methyl butanol। इसका क्या नाम बनेगा? एनी वन ऑफ यू नाउ? 2 2 dimethyl propanol। प्रोपानल, वेरी गुड। पहले वाले का स्केलेटल क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये। दूसरे वाले का स्केलेटल क्या बनेगा, 1 2 3 4, इसके साथ ये, और साथ में मिथाइल। तीसरे वाले का स्केलेटल बनेगा 1 2 3, यहाँ पे O, और यहाँ पे मिथाइल। चौथे वाले का स्केलेटल बनेगा 1 2 3, यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाले दो ब्रांचेस CH3 की आ गई। Are you all understanding this? यस सर। पक्का? वेरी गुड। ये हो गया जी, आपके आइसोमर्स भी आ गए। वी गोइंग बैक, लेट मी ड्रॉ हियर नाउ। ड्रॉ द, he said aldehyde C contain 2 methyl group in the structure but D has 3। अब रीड करते हैं। एल्डिहाइड A हैज ए स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, तो A क्या बनेगा, CH3, CH2, 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 C डबल बॉन्ड
एच, ये स्ट्रेट चेन। 1 2 3 4 5, ये स्ट्रेट चेन हो गया। एल्डिहाइड बी is the only one of the four with the chiral center is this as a pair of optical isomers. B chiral center है, तो क्या बनाएंगे? CH3 CH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड H, ये chiral center आ गया। पेयर ऑफ टू आइसोमर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन मैं रहा है। किस मैं किससे बात कर रहा हूँ? सब जवाब दिया करें। एल्डिहाइड 3 बनाते हैं, व्हाट सी सेज, सी हैज टू मिथाइल ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है जी, टू मिथाइल ग्रुप दे देते हैं इसको। CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, इसका स्केलेटल बना लेते हैं। स्केलेटल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में याद करके आते होते हैं। 1 2 3 4, नई चीज़ है ना, तो हमें आनी चाहिए। तो ये हो गया इसका। और इसका क्या बनेगा? इसका स्केलेटल ये बनेगा। 1 2 3 4 के साथ ये लगाया और साथ में यहाँ मिथाइल लगा दिया। और फिफ्थ बनाते हैं जी। फिफ्थ कौन सा बनेगा? एल डी एट डी, डी डी सेज व्हाट? ओके, डी हैड 3 मिथाइल ग्रुप्स, तो कहाँ बनाएंगे? ये यूं। आपके इस तरह जल्दी जल्दी आने चाहिए हमें। आप देखेंगे कोई बहुत लंबी चेन नहीं होगी, बहुत लंबी चेन वो नहीं देता, अवॉइड करता है। 1 2 3, ये यहाँ पे, और ये मिथाइल। किसको समझ नहीं आई ये बात? किसको समझ नहीं आई ये बात? I think you all got it. Yes? Did you write them down? जिसके एंड पे लगा हो C डबल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड है, यूं भी लिखा जाता है। CH3 CH2 CHO, जब यहाँ पे CHO वो एल्डिहाइड होता है, याद रखें। Have you all done it? Written down? Rania Saraf done? Yes, sir. Ranim done? Yes. Hussain done? Yes, sir. Daniel done? Yes, sir. ओके। अब वो कहते हैं बी के दो ऑप्टिकल आइसोमर बनाए। हु इज बी? हु इज दिस? इज बी। लेट मी राइट ऑन बी हियर, फिर उसके ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं। जिस जिसको समझ आ गई है, यू नो योर केमिस्ट्री इज नियरली ओवर नाउ। CH3 CH2 CH3, नो नो नो, CH, I do it again. CH3 CH2 CH CH3 CHO, तो ये कायरल कार्बन, इसके दो आइसोमर्स बनाते हैं। एक कार्बन यहाँ पे आ गया, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे CH3, आपकी मर्जी है कोई कहीं भी लिख दें। C2H5, और यहाँ पे आ गया CHO। इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं CH CH3 CHO C2H5। इनको बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम कोई मेडिसिन बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। जस्ट वी गॉट द मार्क्स, ये वी नीड द मार्क्स। गॉट इट? समझ आ गई? Yes, sir. So who are they to each other? They are optical isomers. What are they called? Enantiomers. If this is 50% and this is 50%, इन दोनों का 50-50% के मिक्सचर को क्या कहते हैं? Race mate. रेस मेट। वेरी गुड, गुड। Sir, अच्छा जी, enantiomers और optical isomers एक ही चीज़ है? oh yes, collectively they are called enantiomers. कलेक्टिवली होते तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। एनेंटियोमर्स होता क्या है कि पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स whose mirror images are non superimposable, इन्हीं को ऑप्टिकल कहते, वो कहते हैं ना। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा, ये है C5H10O। कहते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा एल्डिहाइड का? वो बनेगा CnH2nO।
अच्छा, एल्डिहाइड, ये दो किस्म के कंपाउंड्स होते हैं। इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बोले? एल्डिहाइड एंड बोलो भाई। Ketone. एंड कीटोन्स। दे आर functional group isomers to each other. They are also functional group isomers of each other. अब कीटोन बनाते हैं C5H10 से। कीटोन यूं बनेगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। तो यहाँ पे लगा दें ये, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, यहाँ पे लगा दें ये। और एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यहाँ पे लगा दें ये। तो ये क्या बनेगा? पहले वाला CH3, CH2, CH2, CH3। दूसरे वाला CH3, CH2, CH2, CH3। तीसरे वाला CH3, 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 CH2। What is wrong in here? यहाँ पे रॉन्ग क्या है? What is wrong here? जी, कोई एनी वन ऑफ यू प्लीज। रॉन्ग। C double bond O पे H नहीं होना हाँ, चाहिए. कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक H भी लगाया हुआ है। दिस इज रॉन्ग। वेरी गुड। आइए अब देखते हैं इसका स्केलेटल क्या बनेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे थर्ड पे आपने लगाना है ये फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5 सेकंड पे लगाना है फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 सेकंड पे फंक्शनल ग्रुप, इस पे मिथाइल। पहले वाले का नाम क्या है बोले? What is the name of A? What is the name of B? And what is the name for C? Who is A? Select the longest carbon chain, select it. Number the chain from the end closer to the functional group is done. इसका नाम बनेगा पेंटेन 3 ओन। दूसरे वाले का नाम क्या होगा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबर फ्रॉम हेयर। क्या नाम बनेगा इसका? पेंटेन 2 ओन। थर्ड वाले का नाम बोले, जल्दी से बताएं मुझे। सेलेक्ट कर लें पहले, बोले। कैन यू नेम इट प्लीज? सर इसमें मिथाइल ग्रुप पहले हम लोग बताएंगे। यस, बिल्कुल वही बनेगा। 1 2 3 4, लेकिन चेन को पहले फंक्शनल ग्रुप से नंबर करेंगे। क्या बनेगा? 3 मीथाइल ब्यूटानोन। ब्यूटान 2 ओन भी ठीक है, ब्यूटानोन भी ठीक है इस केस में। पर ठीक है, आप ये लिखें। समझ आ रही है? जी सर। नेक्स्ट। ऑलराइट, ही सेज दिस इज C4H10O। उसने कहा ये चारों के चारों अल्कोहल हैं। लेट्स ड्रॉ द अल्कोहल्स विद C4H10O। बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल नहीं देगा आपको। C4H10O, इसके कहते हैं आइसोमर्स बनाए। बिल्कुल बनाते हैं। एक बनेगा CH3, CH2, CH2, CH2OH। क्या नाम है इसका? दूसरा बनेगा CH3, CHOH, CH2, CH2। क्या पहले वाले का क्या नाम है? पहले वाले का क्या नाम है बोले भाई? Butanol. ब्यूटान 1 ओल। 1 2 3 4। दूसरे वाले का क्या नाम है? Butan 2ol. ब्यूटेन 2 ओल। नंबरिंग अगर यहां से करेंगे तो बनेगा ब्यूटेन 2 ओल।
एक और बना रहा हूं, वो ये है CH3 CH3 CH2OH, और तीसरा बना रहा हूं CH3 CH3 CH3OH। बोले जी, तीसरे वाले का क्या नाम है? सी का। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। यस बेटा, व्हाट इज द नेम फॉर द सी? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। डन। नंबर यहां से करें, क्या नाम बनेगा बोलें? 2 methyl propanol. नो, 2 methyl प्रोपेन 1 ओल, याद रखिएगा। इसका क्या नाम होगा? बी, डी का। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये वाली? नहीं. कैंसिल करें फिर इसको। इज दिस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? Yes. क्या नाम है? 2 methyl 2 propanol. प्रोपेन 2 ओल, याद रखिएगा। ड्रॉ करें ये सारे। बहुत पहले वाला ए आइसोमर कौन सा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? हुसैन। सर प्राइमरी वाला। दूसरे वाला बी। सर सेकेंडरी। सी। सर सी भी सेकेंडरी है। सी। सर सी प्राइमरी। बी। सर टर्शरी। वेरी गुड, ड्रॉ ऑल ऑफ देम नाउ। चारों आइसोमर्स ड्रॉ करें, शाबाश, प्रॉपर्ली। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बिलीव मी। इसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, खत्म। अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? यस सर। नेक्स्ट। रानिया, डन? Yes, sir. गुलसाना, डन? कम होते जा रहे हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Then we have to check the isomerism later on. Okay, which of these isomers has the chiral center? Which of these isomer exist as
as the two molecules which are biologically different. जी बोलें ABCD. Sir, B. Very good. Which of these exist as optical isomers? बोलें रानिया. Which of these molecules or isomers, one of the isomer exists as the optical two structure of the two isomers? Two isomers कौन कौन से हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं? 1 and 2. नहीं, A and B, sorry. ओ भाई, ए स्ट्रक्चर आइसोमर्स ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स, बी अकेला आइसो ऑप्टिकल आइसोमर है. Oh, sorry. हम्म. Yes, sir. नेक्स्ट. बता तो रहे. ऑलराइट. उसके स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ करो. व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? डिफाइन स्टीरियो आइसोमर्स. व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? डेफिनेशन भी तो याद करनी है ना. व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स बोलें. टाइप isomers which have the same molecular formula, same structural formula, but different arrangement of atom in space. Same molecular formula, same structure formula, different arrangement of atom in space. What are structure isomers? बोले structure isomers. तानिया. रानिया structure isomers. हुसैन. Sir, same molecular formula but different structural formula. Yeah, compounds with. Sir, ये stereoisomers जरा फिर से explain कर सकते हैं? वीडियो वॉच करें. हम्म. ठीक है सर. कंपाउंड विद द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है. कायरल सेंटर. व्हाट इज कायरल सेंटर? Sir, a compound in which carbon is attached to 4 different functional groups. कंपाउंड्स containing carbon bonded to 4 different atoms or groups. ओके. अब वो कहता है C7H16 के दो आइसोमर बनाए जो कि देखिए 4 मार्क्स फॉर दिस. 4 मार्क्स दे रहे हैं आपको इस काम के. बहुत आसान चीज. C7H16 के आइसोमर्स बनाए जो कि कायरल हों. वो देखें यूं बनाने आपने. CH3 CH2 ये आपको इस तरह आने चाहिए बेटा. एक ये हो गया. दूसरा बनाते हैं. CH3 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 CH2 CH3 ये कायरल हो गया. समझ आ रही है कि नहीं आई है? ए कायरल है कि नहीं है? बी कायरल है या नहीं है बोले. सर, ये तो है. बी भी है ना. चले बी को चेक करते हैं. इसकी एक कार्बन ऊपर H लगा हुआ है, नीचे CH3 लगा हुआ है, लेफ्ट पे क्या लगा हुआ है C3H7 और राइट पे क्या लगा हुआ है C2H5 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ. सर, लगा हुआ है. So it is a chiral center. Got it? जी सर. ड्रॉ करें इसके सारे दोनों आइसोमर्स ड्रॉ करें. शाबाश. दानियाल, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? Yes, sir. रानीम, क्या हुआ था? आपकी कॉल क्यों हैंग अप हो गई थी? सर कब? अभी थोड़ी देर पहले. ओनली 3 वर लेफ्ट बिहाइंड. सर मैं क्लास में ही थी. अच्छा. सर, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी. मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा था. वो कभी डिकनेक्टिंग में चला जाता. सही. चलें जी. आज के लिए इनफ है.
Yes. Is enough for today? Yes. चले इसको लिख लें, बाकी इंशाल्लाह बाद में करेंगे। फिर उसके बाद ये सारे आइसोमर्स ड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी है। The most important thing is know-how of drawing the isomers, and you get familiar of the organic compounds. This is the best thing. We have to get there now. Assalamu alaikum.